Hi everyone. I am going to teach 8th standard 6th lesson समाचार पत्र की आत्मकथा. In the 8th आठवीं कक्षा की छठा लेसन समाचार पत्र की आत्मकथा. अच्छा बच्चे, हम सुबह उठते ही किसकी इंतजार करते हैं? सुबह आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी वो सब तो किसकी इंतजार करते हैं? सुबह उठते ही कॉफी के साथ उसको पढ़ने के लिए कुछ चाहिए. वो चीज क्या है? अच्छा, वो है समाचार पत्र. सभी लोग सुबह उठते ही क्या देखते हैं? बाहर आकर समाचार पत्र के इंतजार करते हैं. कुछ लोगों के लिए तो बिना समाचार पत्र के बिना वो लोग तो दूसरे काम में नहीं जाते. पहले बैठकर चाय के साथ क्या देखते हैं? चाय या कॉफी के साथ पहले न्यूज़पेपर को देख के समाचार पत्र को देखकर फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं. जो भी काम करना है तो पहले उनके लिए क्या चाहिए? कुछ लोगों के लिए तो पहले वो समाचार चाहिए, जो दुनिया में होने वाले समाचारों को पढ़कर बाद में अपने अपने कामों में लग जाते हैं. Children, here what happens in the early morning? If you get up in the morning, your parents or your elders, they will see the first newspaper with the coffee or the tea. Then they will move to their work. That is the habit of them. They addict to the newspaper. Without newspaper, they will not go anywhere. First, they will read out the newspaper. If they were grandparents are there, means from the first page to last page, everything they will read and they will collect the news. Then they will go to their work. So it's in our daily life. We need must this newspaper. Okay, without newspaper we will not get any news. We can see in the nowadays we can see in the TV and all, but in the newspaper we will get more information in the newspaper also. So it's very essential nowadays. What is the TV, newspaper and magazines are very essential to in our daily life. We will increase our what is the knowledge. इससे हमारे क्या होते हैं? ज्ञान भी बढ़ती है. समाचार पत्रों को पढ़ने से हमें ज्ञान भी बढ़ती है. कई तरह से विज्ञापन को भी उसमें देख सकते. सभी तरह के समाचार को हम इस समाचार पत्र में पढ़ सकते. From the all the news we can read in this newspaper. From the what is that other countries news also we can here read in this newspaper. Okay, children, shall we move to the lesson? For this lesson, there is no writer. This is the collected after some part of some book. So there is no writer for this lesson also. Okay, only about the given the about newspaper. How the olden days that kings they were using the papers. How they were sending the messages. That also they given. Which is the first newspaper in the India also and in Karnataka also. All the details they given in this. What is that? समाचार पत्र की आत्मकथा. That is only newspaper autobiography. आत्मकथा means autobiography of newspaper. इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं. खाली इस पाठ के द्वारा आप लोग क्या समझ सकते हैं? समाचार पत्र के महत्व. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड उसके लाभ के बारे में समझ. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. इन दीज टू थिंग्स दे विल लर्न फ्रॉम दिस इन दिस लेसन. आप किसके बारे में जान सकते हैं इस पाठ के द्वारा? समाचार पत्र पढ़ने का क्या है, उससे क्या महत्व है और उससे हमें क्या लाभ मिलती है. रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूँ. एक पहेली है, उसमें क्या है? रोज सवेरे घर में आऊं. रोज सवेरे में हर दिन आपके घर आता हूँ. डेली आई कम टू योर होम. देश विदेश की खबर सुनाऊं. देश विदेश के देश के और विदेश के खबरों को भी मैं क्या करता हूँ? आपको सुनाता हूँ. I'll tell you the what is that countries and other countries news also for you. जमीन आसमान की बातें बताऊं. जमीन धरती और आसमान की सब कुछ बातें आपको बता देती हूँ. क्या हो रहे इस धरती पे और आसमान में क्या हो रहा है? आसमान में मतलब we will come to know the what is the weather and all. Today we will get the rain, how that cyclone, everything will come to know in this news. So जानते हो मैं कौन. आप जानते हैं मैं कौन हूँ. You know whom am I. Okay, वो कौन है? वही है समाचार पत्र. That is only newspaper. जमीन and आसमान is the opposite word here.
Here, Jamin and Asman are also opposite. Jamin means earth, Asman means sky, Desh means our country, Videsh means other countries. So these two also opposite words and Vilom शब्द. अच्छा, इसमें तो हमें जमीन आसमान की और देश विदेश की खबरें हमें समाचार पत्र से मिलती है. याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ. आपको याद आया मैं कौन हूँ? मैं ही समाचार पत्र हूँ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ. सुबह होते ही, सुबह मतलब इन द मॉर्निंग, एवरीबॉडीज होम यू कैन सी मी. हु? दैट इज समाचार पत्र. सबको, सबने तो कहाँ देख सकते हैं मुझको? सभी के घर में सुबह के समय में मुझे आप लोग तो देख सकते हैं. कई लोग के मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. कई लोगों, कुछ लोगों को समाचार पत्र पढ़े बिना उसको तो क्या नहीं होती? सुबह नहीं होती. इफ दे आर नॉट रीडिंग द व्हाट इज द न्यूज़पेपर, दे विल नॉट फीलिंग दैट टुडे इज द मॉर्निंग. कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं. मैं पहले ही बताई थी, कुछ लोग मुझे पढ़ते ही, पढ़ते मीन दे वर रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड दे विल हैव द चाय और द व्हाट इज दैट कॉफी और द टी. कुछ लोग क्या करते हैं? चाय पीते पीते या कॉफी पीते पीते क्या करते हैं? मुझे पढ़ते हैं. मुझे मतलब समाचार पत्र. कुछ लोग क्या करते हैं? नाश्ता करने के समय पे भी क्या करते हैं? समाचार पत्र को पढ़ते हैं. पढ़ते पढ़ते वो लोग भी खा लेते हैं. कुछ लोग तो बस में सफर करने के समय में भी क्या करते हैं? वो लोग तो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, समाचार पत्र को पढ़ते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ. ये मैं व्यक्ति जीवन का, व्यक्ति मतलब कौन है? हम सब है. व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. मैं आई एम द पार्ट ऑफ होम फॉर द ह्यूमंस. हिस्सा मतलब पार्ट. मैं किसका एक अंग बन गया हूँ? मैं सभी किसके? मानव के महत्वपूर्ण अंग बन गया हूँ. महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट. मैं तो सभी के जीवन में क्या बन गया हूँ? मुख्य रूप से आया हूँ. सभी को मुझे, मेरी जरूरत है. किसको? सभी मनुष्य को. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. मनुष्य घर बैठे बैठे, मनुष्य मतलब हम सब घर बैठे बैठे क्या सुन सकते हैं? हम तो पूरे विश्व की खबरों को सुन सकते हैं. उसको जानकारी देता हूँ. वो क्या करता है? समाचार पत्र से हमें पूरे विश्व के क्या जानकारी मिलती है? विश्व की जानकारी हमें मिलती है. वी कैन सिट एट होम एंड वी कैन कलेक्ट द न्यूज फ्रॉम द होल वर्ल्ड. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ. फिर अमीर गरीब सभी के लिए सस्ता सुलभ साधन. सस्ता मीन everyone can buy. Those who are rich, those who are poor, everyone can buy easily. This is very, what is that? Sasta means there is less cost. It is very less cost of this paper, so everyone can buy, because that is the cost at least 5 rupees. Everyone can buy and they can read this one. Whose house there is no TV, they are not getting any info. Even the poor people also they can purchase, they can read and they can increase their knowledge. किसके घर में रहता हूँ? सभी के घर में. मतलब अमीर गरीब ये तो विलोम शब्द है. सभी के घर में सभी लोग पढ़ सकते हैं. अमीर लोग भी पढ़ सकते हैं और गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं. अमीर मीन्स रिच, गरीब का मतलब है पुअर. सभी का क्या है? सस्ता साधन हूं मैं. तो सस्ता मीन्स वेरी चीप. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? सस्ता और महंगा इज द ऑपोजिट वर्ड. सस्ता means very less cost, cheap. महंगा means very high cost. It's what is that? सस्ता means very in the less cost we can get. महंगा means it's very high cost. Cost means money. प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे. प्राचीन काल में मतलब in olden days how the kings were sending the messages, how they were sending the through the what is that? Pigeon. कबूतर में मैसेंजर. वो कैसे भेजते थे? पुराने जमाने में राजा लोग संदेश को, एक राजा से दूसरे राजा को संदेश भेजना है तो कैसे भेजते थे वो लोग? तो कबूतरों के जो पैर होते उसमें तो क्या करते थे? वो था
जो चिट्ठी होते उसको उसके टांगे में बांध कर भेज देते थे. Nowadays we are getting the message how through the phone, letters, telegrams, many ways is there for us. But in the olden days they don't have the any what is that messengers like a though so they were using the what is they were using the pigeon to send the messages to one king to another king. They were sending the they given the training to the those pigeons. It will go and correctly reach to that place and it is giving the what message he sent that letter he is giving and it is coming back. So राजा महाराजा लोग इन कबूतरों का उपयोग करते थे. संदेह वाहक भी संदेश लेकर जाते थे. संदेह वाहक में like a messenger. संदेह वाहक में this is the messenger type that the pigeon was going. कैसे जाते थे ये तो कबूतर तो वो संदेह वाहक के रूप में जाते थे. आज समाचार पहुंचने के लिए कई साधन है. आज समाचार सुनने के लिए हमें कई तरह के साधन है. साधन मतलब we have more instruments to get the what is that news what happening in the throughout the world. जिनमें रेडियो आजकल तो हम तो रेडियो देखते ही नहीं है. देखा कुछ अभी आने वाले बच्चों को तो रेडियो को पता ही नहीं है. पुराने काल में क्या करते थे वो लोग तो रेडियो सुन सकते थे उससे तो अभी तो वो भी बंद हो चुके हैं. रेडियो तो कम ही है. और टेलीफोन का मतलब through phone we are using. Nowadays we are using the mobiles. Before we were using the landline phones, telephones. अभी तो क्या है सभी के पॉकेट में क्या है मोबाइल फोन है. उससे भी हम उधर ही बैठ के क्या कर सकते हैं पूरे विश्व में होने वाले समाचार को हम देख सकते हैं उसी मोबाइल में. दूरदर्शन का मतलब है टीवी. कंप्यूटर कम उससे ज्यादा कंप्यूटर में भी हम देख सकते. कई तरह के साधन हमें समाचार देखने के लिए और सुनने के लिए है. मगर पुराने जमाने में तो कुछ नहीं थे. वो कबूतरों द्वारा संदेशों को भेजा करते थे. अच्छा बच्चे द नेक्स्ट पैराग्राफ. रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है. रेडियो में क्या कर सकते हैं हम तो खाली सुन सकते हैं. ओनली इन द रेडियो वी कैन लिसन. और दूरदर्शन जैसा साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है. दूरदर्शन में क्या कर सकते हैं हम तो सुनने के द्वारा हम देख भी सकते हैं. आप इन द टीवी यू कैन सी यू कैन लिसन आल्सो एंड वी कैन वॉच द व्हाट इज द पिक्चर आल्सो बिकॉज बोथ वी कैन डू. क्या हो रहे हैं सब जगह पूरी तरह से हम पिक्चर के रूप में वहां देख सकते हैं. टीवी में वी कैन सी व्हाट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड द अराउंड अस. सो वी कैन वॉच इन द टीवी. लेकिन इन सभी से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ. सबसे कम पैसे में सभी लोगों को मैं पहुंचाता हूँ. वो कौन है समाचार पत्र. लेकिन इन सभी से सरल मतलब वेरी सिंपल. मितव्ययी मीन्स वेरी लेस कास्ट और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाते. कई तरह तरह के समाचार वेराइटी ऑफ द मैसेजेस आई विल गिव यू द पीपल एंड वेरी simple. There is no much cost. In the less cost only whole world's message I'll give you. भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से 1780 में प्रकाशित हुआ. पहले भारतवर्ष में पहला अंग्रेजी पत्र कौन सा अंग्रेजी में छपा था वो न्यूज़पेपर वो तो क्या है बंगाल गजट. पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में छपा वो भी 1780 में बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी पत्र प्रकाशित हुए. इन द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन द 1780 दैट इज आल्सो इन इंग्लिश न्यूज़पेपर दैट इज बंगाल गजट प्रकाशित हुआ. हिंदी में उदंत मारताड़ नाम से और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में 1843 में प्रकट हुआ. क्या हुआ इधर उदंत मारताड़
अभी क्या हुआ, इधर उदंत मार्तंड और मंगलुरु समाचार इन दोनों पत्रिकाओं में कब प्रकाशित हुए? इन दोनों का तो 1843 में इन दोनों की समाचार पत्र प्रकाशित हुए. In the English newspaper, it is published in the, that is in the Bengal Gazette in the 1780, and Hindi and Kannada newspapers, that is one is Hindi is Udant Marthand और Mangaluru Samachar in the 1843. It is first newspapers. वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहा है. अभी वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट, नाउ इट इज द प्रेजेंट मेनी न्यूज़पेपर वी विल गेट. सभी अभी वर्तमान में तो बहुत तरह के समाचार पत्रों को हम देख सकते हैं. वैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. इन सभी समाचार पत्रों को हम देख सकते. अलग अलग क्या है, राज्य में अलग अलग तरह के हम क्या देख सकते हैं, इन समाचार पत्रों को देख सकते हैं. अभी कर्नाटका में लिए तो विजय कर्नाटका, संयुक्त कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी है. इन द इंग्लिश समाचार पत्र में गए तो नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे है. हिंदी में देखे तो अमर उजाला ऐसे पत्रिकाओं को हम देख सकते. कई तरह के समाचार पत्रों को हम देख सकते हैं. पहले कौन कौन से थे? खाली अंग्रेजी समाचार पत्र थे, वो भी कौन थे? बंगाल गजट in the 1780. In the one more newspaper was in Hindi, that is what is that? Udant Martand. And Kannada newspaper was what is that? Mangaluru Samachar, that is also in the 1843. In 2020 we can see the many types of newspapers. मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रखता हूँ. दैनिक मीन्स डेली. आपके साथ कौन कौन से समाचार पत्रों को देख सकते हैं? डेली न्यूज़पेपर यू कैन सी. एंड साप्ताहिक 7 डेज, साप्ताहिक में 7 डेज वंस, हफ्ते में एक बार मिलती है. वो तो क्या होती है, जैसे मैगजीन जैसे होती है, वो तो उसको देख सकते हैं. पाक्षिक मतलब 15 days once also. मासिक means monthly once also. We can see these types of magazines not only in the daily. We can see some of the magazines like in the 7 days once, weekly ones, 15 days once, and monthly ones. We can see the magazines also, not in the newspaper. Along with the newspaper, we can see the daily, weekly, 15 days once, and the monthly ones. We can see the magazines. विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है. इफ यू टेक द न्यूज़पेपर, हम समाचार पत्र में क्या देख सकते हैं? उसमें क्या होते हैं, कुछ भाग होते हैं उसमें. तो किसके लिए, कौन से भाग में देखना चाहिए? अभी तो आपको सामाजिक विषय के बारे में चाहिए तो ऐसे पेज नंबर होती है एक, नहीं तो दूसरे पेज में धार्मिक विषयों के बारे में होती है, और तीसरे पेज में साहित्यिक, लिटरेचर के बाद में होती है, और आर्थिक में इकोनॉमी, बिजनेस के बारे में होती है, और सांस्कृतिक मतलब कल्चर, एंजॉयमेंट, उसके बारे में होती है, और मनोरंजन आल्सो एंजॉयमेंट. कई तरह के उसमें तो क्या होती है, भाग होती है. वी कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स. वन इज इन द व्हाट इज दैट, सम सोशल व्हाट अराउंड इट इज हैपनिंग. नेक्स्ट वन इज religious papers, column, and साहित्यिक means literature also. Like this part we can see in the newspaper. सभी भागों में हम तो समाचार पत्र में देख सकते हैं. मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है. मुझ में क्या होती है, देश में और विदेशों में होने वाले घटनाओं के बारे में भी मैं तो आप सभी को सुनाता हूँ और उसके बारे में विवरण देता हूँ. मुझसे खेलकूद का मतलब है जो भी गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, उसका भी एक कॉलम अलग होती है. और सिनेमा, वो फिल्म के बारे में भी अलग होती है. मौसम का मतलब वेदर. नौकरी संबंधी विज्ञापन. वी कैन सी द व्हाट इज दैट, एनी एड यू नीड फॉर द नौकरी मीन्स फॉर द जॉब्स, एनी वैकेंसीज इफ यू नीड, if you see in that column we can get the jobs. Bazaar bhav, like a market price, what happening nowadays, what is the gold rate, what is the onion rate, what is the these vegetables, everything we can see in the newspaper only. Whatever you want, everything we can see in the newspaper. कृषि व्यापार, कृषि के संबंधी means what the farmers they need
for the agriculture, that is also in the newspaper. संबंधी सूचनाएं मिलती, ये सभी सूचनाएं हमें मिल जाती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षाोपयोगी सामग्री, परीक्षाफल आदि मुझसे जान सकते हैं। कार्टून, बच्चों के लिए कार्टून पसंद है, इसलिए हर रविवार के दिन एक कार्टून की कॉलम आती है उसमें। तो children like what is they like the cartoon, so weekly once they will get the separate column for the kids. And padabandh means we will play in the sudoku and all, no, in that also we will get padabandha, we will make that sentence and wordings will make, no, that is called padabandha. Vivaha sambandhi, who want to get married, for them also separate ad, this boy girl they will match there and they will see in the newspaper only. विज्ञापन मतलब है एडवर्टाइजमेंट। परीक्षा उपयोगी सामग्री, जो बच्चों के लिए परीक्षा के लिए जो भी चीज चाहिए उसके लिए जो भी जरूरत है वो भी आ जाती है। परीक्षा फल, व्हाट रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट, दैट आल्सो वी कैन सी इन दिस न्यूज़पेपर। और आदि मुझसे जान सकते हैं, आदि मुझसे मतलब मेरे समाचार पत्र से आप लोग जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी। मेरे अंदर समय समय पर मीन्स सम आर्टिकल्स वी विल सी इन दैट, some writers or literatures they will write some articles also, that one also we can see in the newspaper। कुछ साहित्यकारों ने क्या करते हैं, कुछ कहानियां चुटकुले कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं उसमें, तो वो भी हम समाचार पत्र में छपते हैं और उसको भी आप लोग देख सकते हैं। विशेष अंकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती। ये सभी चीजें भी प्रकट होती है। कौन कौन सी? कविता होती है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में होती है, एकांकी नाटक नाटक के बारे में भी होती है, और कहानी मतलब स्टोरीज, आलोचना मीन्स वी कैन थिंक, एंड स्वास्थ्य मीन्स अबाउट हेल्थ टिप्स आल्सो, एवरीथिंग वी कैन सी इन दिस न्यूज़पेपर। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। किसानों के लिए मतलब जो किसान लोग होते खेतों में काम करते ना, उनके लिए भी जो भी जानकारी चाहिए तो मैं देता हूँ। मीन्स वॉट एवर द फार्मर्स दे नीड एनी इंफॉर्मेशन, दैट इज आल्सो आई एम गिविंग इन दिस न्यूज़पेपर। ओके चिल्ड्रन, मूव टू द नेक्स्ट। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों से, अबाउट साइंटिस्ट आल्सो आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन। वैज्ञानिक विषयों के बारे में भी मैं तो क्या देता हूँ, जानकारी देता हूँ। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों के कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। व्हाट कतरने मीन्स कटिंग्स। What you can do in the Qatar means any important pictures it is there means what the people will do, they will cut and keep and they will make a file। जो लोग क्या करते हैं, जो भी मुख्य विषय होते हैं तो जो भी मुख्य चित्र होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको कट करके अपने फाइल में रखते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। मैं व्यक्ति के जीवन का प्रमुख अंग बन गया हूँ। कौन? समाचार पत्र। इट्स एसेंशियल इन द ह्यूमन लाइफ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में आपकी बहुत सहायता करूंगा। आप लोगों में अभी ये समाचार बच्चों से कह रही है, अभी से आप समाचार पत्र पढ़ना शुरू किए तो आपको भी बहुत सहायता होगी। क्या होगी? आपके क्या हो जाएगी, बुद्धि भी बढ़ जाएगी। फॉर द चिल्ड्रन दिस न्यूज़पेपर इज टेलिंग, इफ यू स्टार्ट नाउ reading the newspaper you can get and you can increase your knowledge, but nowadays there is no time for the children or the kids to read the newspaper because they are addicted to the TV or the mobile. There only they will get the information. In the olden days, how nicely that people were reading the news, no? Now nowadays kids we can't because they can't read, because they need the ready food. Everything they will get from the what is it, Google. They will go to cyber, they will collect there. No one will cut and keep the what is that important messages, because everything in their hand only. What? That is the mobile internet. They will check and they will get the information. But we should make the habit to reading the newspaper. That is must. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन गया तो जिंदगी भर टूटेगा नहीं। एक बार आपके समाचार पत्र को पढ़ना शुरू किया तो वो तो कैसा होता है, रिश्ता बन जाता है। मीन्स वी कांट लीव दैट वन।
एवरी डे वी विल वेट फॉर द न्यूज़पेपर। सुबह उठते ही आप भी क्या करते हैं, वो समाचार पत्र के लिए इंतजार करते हैं। एक बार आप पढ़ना शुरू किए तो आपको और मेरा रिश्ता भी बढ़ जाता है। रिश्ता मतलब रिलेशनशिप। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। चलिए आज से ही क्या करना है आपको, तो समाचार पत्र पढ़ने की आदत को डालनी चाहिए। टुडे itself you start and make the habit of reading the newspaper. Okay children, I hope understood this lesson. It's about the newspaper, a biography of the newspaper, समाचार पत्र की आत्मकथा। आपको पता चल गया, हम लोगों को पता नहीं थे पहले कि कौन सा पहला पत्र था अंग्रेजी में और दो हिंदी और कन्नड़ में कौन कौन से समाचार पत्र थे। पहला समाचार पत्र अभी हम लोग इससे जान गए। पहला पत्र अंग्रेजी पत्र कौन सा था, बंगाल गजट थी, और उदंत मार्तंड एंड मंगलुरु समाचार इट्स पब्लिश इन द 1843, वो भी हिंदी में और कन्नड़ में। अभी आजकल तो बहुत सारे समाचार पत्रों को हम देख सकते हैं। बच्चे आप लोग भी सुबह उठते ही एक एक पेज को पढ़ना शुरू कर दीजिए समाचार पत्र में। वो तो क्या है, बहुत अच्छी होती है और यू कैन इम्प्रूव योर नॉलेज ऑल्सो। आपकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इस समाचार पत्रों को पढ़ने से। आजकल आप लोगों को स्कूल में भी मिलती है समाचार पत्र, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, ऐसे बैग में रख के ले जाते हैं, वो गलत है। अभी से आज से ही आप लोग समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।